Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning computer of class 7 by Green Apple, and here is your book Computer Connect. Let's start chapter number 7, HTML Advanced Features. So here we are going to learn about HTML, and in this chapter we will learn about the advanced features of HTML. Let's move on to the introduction. So HTML, which is also known as Hypertext Markup Language, is a code that is used as a set of instructions or markup elements. So HTML क्या है? ये codes हैं जिन्हें set of instructions भी कहा जाता है. ये कुछ set of instructions है या markup elements हैं. These are used to structure and format content on a web page. जिसे यूज किया जाता है कंटेंट जो हमारा वेब पेज का होता है उसे फॉर्मेट करने के लिए और स्ट्रक्चर देने के लिए. Let's move on to the learning objectives. So after learning this chapter, you will be able to know about, you will understand the importance of HTML tags. आप HTML tags, elements और attributes के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे, उसकी क्या importance है ये समझ जाएंगे. You will also identify the uses of frames and forms in HTML. HTML में frames और form का क्या काम होता है, क्या ज़रूरत है, ये भी आप समझ जाएंगे. So let's move to the conversation which is being held between Meera and Tina. So Meera says to her friend Tina that, hey Tina, have you ever wondered how web pages are created? क्या तुमने कभी सोचा है कि ये जो web pages है इसे कैसे create किया जाता है? Tina says, yeah, I have always been curious about that. हाँ, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा curious हूँ, हमेशा ये समझती थी कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, ये मैं जानने की कोशिश करती थी. Now Meera says, well, it all starts with HTML, which stands for Hypertext Markup Language. तो मीरा ने कहा ये सब कुछ जो है HTML से स्टार्ट होता है और जिसका फुल फॉर्म है Hypertext Markup Language. Now Tina says, HTML, what is that? ये क्या होता है? HTML क्या है? Meera is explaining to her that HTML is like the language of the internet. ये एक इंटरनेट के लैंग्वेज की तरह है. It is a set of special codes. ये special codes का एक सेट है that web developers use to create web pages. जिसे जो है web developers use करते हैं किसके लिए? क्रिएट करने के लिए वेब पेजेस को. नाउ टीना इज सेइंग, सो हाउ डज इट वर्क? ये कैसे काम करता है? नाउ मीरा एक्सप्लेन्स हर दैट HTML टेल्स द ब्राउजर व्हाट्स अ हेडिंग, अ पैराग्राफ, एन इमेज, अ लिंक एंड मोर. तो HTML जो है ब्राउजर को ये सारी चीजें बताता है, एक्सप्लेन करता है कि ये सारी चीजें क्या हैं. With HTML you can create the structure. HTML के साथ हम structure को create कर सकते हैं and layout of a web page. और जो layout है हमारे web page का उसे create कर सकते हैं. Now Tina says that sounds interesting. ये तो काफी interesting लग रहा है. Can we learn how to use HTML? क्या हम इस चीज को सीख सकते हैं कि कैसे हमें HTML को यूज करना है? Meera says, of course, learning HTML is like learning a new language. HTML को लर्न करना कैसा है? एक नए लैंग्वेज को लर्न करने जैसा है. We can start by understanding some basic HTML tags. So कुछ basic HTML tags को समझने के बाद हम easily इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं. Tina says, great, let's dive into the world of HTML. तो चलो HTML की दुनिया में चलते हैं. So HTML, which is also known as Hypertext Markup Language, is a language. ये एक लैंग्वेज है जिसे यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए. किसको? एलिमेंट्स को और इंफॉर्मेशन को एक वेब पेज पे. ये हमें हेल्प करता है स्ट्रक्चर करने में अपने प्रेजेंटेशन को, जो भी हमारा कंटेंट होता है प्रेजेंटेशन का, जिसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, पैराग्राफ फॉर्म में, लिस्ट हो सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स के साथ, एंड द इंक्लूजन ऑफ इमेजेस एंड डेटा टेबल्स. यहाँ पे डेटा टेबल्स भी हम डाल सकते हैं और इमेजेस भी डाल सकते हैं. सो इन एसेंस, अगर हम एसेंस की बात करें, सो HTML प्रोवाइड्स अस द फ्रेमवर्क फॉर अरेंजिंग एंड डिस्प्लेइंग वेब कंटेंट. HTML क्या करता है? हमें प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क. किस चीज के लिए?
अरेंज और डिस्प्ले करने के लिए वेब कंटेंट को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। सो कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं HTML के। पहला पॉइंट कहता है द वर्ड हाइपरटेक्स्ट। ये जो वर्ड हाइपरटेक्स्ट है, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू द टेक्स्ट विच कैन एक्ट एज अ लिंक। सो ये वो टेक्स्ट है जो लिंक की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ड मार्कअप। अब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज तो हमने सुना। सो हाइपरटेक्स्ट क्या है? ये एक लिंक है। मार्कअप क्या है? मार्कअप refers to the symbols that are used to define the structure of the text. ये वो सिंबल्स हैं जो टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। The markup symbols tell the browser how to display the text. So ये जो मार्कअप सिंबल है ये बताता है ब्राउजर को कि कैसे टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है and are often called tags in HTML। और इन्हें जो है ज्यादातर हम HTML टैग्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट द वर्ड लैंग्वेज। अब HTML का हाइपर भी पढ़ लिया, टेक्स्ट भी पढ़ लिया, मार्कअप पढ़ लिया, अब लैंग्वेज की बारी आती है। सो ये जो वर्ड लैंग्वेज है ये रेफर करता है एक सिंटेक्स को। इट रेफर्स टू the syntax that is similar to any other programming language। ये एक ऐसा सिंटेक्स है जो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा ही है। सो ये है HTML का मीनिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नो द फैक्ट। सो HTML was created by Tim Berners-Lee in the year 1990। सो ये जो HTML है इसे क्रिएट किया था टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में, while he was working at CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इन स्विट्जरलैंड, जब वो यहाँ पे काम कर रहे थे। लेट्स मूव ऑन टू द HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। HTML tag, so what is it? HTML tag is a command that tells the web browser how to display the text। HTML tag क्या है? ये एक कमांड है जो वेब ब्राउजर को बताता है कि टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले करना है, ऑडियो को कैसे डिस्प्ले करना है, ग्राफिक्स को कैसे डिस्प्ले करना है, या फिर वीडियो को कैसे डिस्प्ले करना है हमारे वेब पेज पे। टैग्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ पेयर ऑफ एंगुलर ब्रैकेट्स। सो ये जो टैग्स क्या है, इनको जो है हम इनके जो एंगुलर ब्रैकेट इनकी वजह से पहचान सकते हैं। द टैग नेम इज स्पेसिफाइड बिटवीन द एंगुलर ब्रैकेट। सो ये जो टैग नेम है ये आपको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर दिखाई देंगे। मोस्ट ऑफ द टैग्स यूजुअली कम इन पेयर। ज्यादातर जो टैग्स हैं वो पेयर में आते हैं। स्टार्ट टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। ये है आपका स्टार्ट टैग और ये है आपका क्लोजिंग टैग। नाउ द स्टार्ट टैग इज सिंपली द टैग नेम। ये जो स्टार्ट टैग है ये सिर्फ जो आपका टैग है उसका नाम होता है जिसको जो एंगुलर ब्रैकेट में रखा जाता है। लेकिन जो क्लोजिंग टैग है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक फॉरवर्ड स्लैश साइन भी मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये साइन भी मिलेगा आपको किसमें? क्लोजिंग टैग में। कुछ टैग्स कैसे होते हैं? कुछ टैग्स जो है एम्प्टी टैग्स होते हैं जिसका मतलब है कि इसमें आपको क्लोजिंग टैग नहीं मिलेगा। टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। अब ये जो टैग्स हैं ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। मीन्स चाहे हम अपर केस में लिखे, लोअर केस में लिखे, कैपिटल ए लिखे, कैपिटल बी लिखे, या फिर स्मॉल ए लिखे, स्मॉल बी लिखे, दोनों को ही ये सेम पड़ेगा। नेक्स्ट, द स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग नेम शुड बी द सेम। जो स्टार्टिंग जो हमारा टैग है और जो क्लोजिंग टैग है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हमने कुछ और लिखा और बाद में कुछ और लिख रहे हैं। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि हमने लिखा है बी हेलो और फिर हमने क्लोजिंग टैग आई का लगा दिया है, तो ये रॉन्ग है, इसे इनवैलिड माना जाएगा। दोनों ही यहाँ पर डिफरेंट है। लेकिन अगर हमने बी ओपनिंग टैग लगाया है फिर हेलो लिख के बी क्लोजिंग टैग लिखा है तो ये वैलिड माना जाएगा। इफ यू डोंट स्पेसिफाई द एंगुलर ब्रैकेट, अगर हमने एंगुलर ब्रैकेट को स्पेसिफाई नहीं किया है किसी भी टैग के लिए तो ब्राउजर क्या करेगा? उसे ट्रीट करेगा एक सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में। उसे लगेगा ब्राउजर को कि एक नॉर्मल सा एक टेक्स्ट है।
द टैग कैन ऑल्सो हैव एट्रीब्यूट्स, टैग में आपको एट्रीब्यूट्स भी मिलेंगे टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टैग, जो कि हमें टैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है टू द ब्राउजर को. सो इन HTML टैग्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स. यहाँ पे टैग्स को हम दो मेन टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहला है एम्प्टी टैग्स, जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स है, इसमें आपको क्लोजिंग टैग की अलग से ज़रूरत नहीं है. फिर आते हैं कंटेनर टैग्स, जो पेयर में होते हैं, पेयर टैग्स होते हैं या फिर अनपेयर टैग्स भी यहाँ पे होते हैं. सो चलिए पहले आते हैं हम कंटेनर टैग्स पे. सो ये जो टैग्स है दे आर द टैग्स दैट कम in pairs and has a starting tag and an ending tag. So ये जो टैग्स है ये पेयर में आते हैं. यहाँ पे आपको स्टार्टिंग टैग भी मिलेगा, एंडिंग टैग मिलेगा, which has content between them, जिसके बीच में आपको कंटेंट मिलेगा. जो कंटेंट है वो टेक्स्ट हो सकता है, दूसरे HTML एलिमेंट्स हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों का, टेक्स्ट का और HTML एलिमेंट्स का. अभी जो कंटेनर टैग्स हैं ये जो है डिफाइन किए जाते हैं एज द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ एन एलिमेंट. इसे जो डिफाइन किया जाता है एक बिगनिंग या फिर एंडिंग किसी भी एलिमेंट का, एंड आर यूज टू स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट द कंटेंट. इसे यूज किया जाता है किस लिए? स्ट्रक्चर करने के लिए, जो कंटेंट है उसका स्ट्रक्चर देने के लिए, उसका एक फॉर्मेट देने के लिए इसे यूज किया जाता है. एंड हियर यू कैन सी द एग्जांपल. ये है हमारा ओपनिंग टैग, अगेन ओपनिंग टैग. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स हमारे टैग्स के. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय HTML? You have to answer this question yourself. And what are the tags in HTML and why do we use them? Tags क्या होते हैं HTML में, हम उन्हें क्यों यूज करते हैं? Let's move on to the next topic, which is empty tags. So these are the tags that do not have any content. ये वो टैग्स हैं जिसमें आपको कंटेंट नहीं मिलेगा या फिर टेक्स्ट नहीं मिलेगा. बिटवीन एन ओपनिंग टैग एंड एन क्लोजिंग टैग. सो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बीच में आपको कोई भी टेक्स्ट नहीं मिलेगा. क्यों? इसलिए क्योंकि इन्हें जो है क्लोजिंग टैग की जरूरत होती ही नहीं है. They typically stand alone by themselves and are used to insert specific elements into a document. So ये जो टैग्स हैं ये खुद अकेले रह सकते हैं और इसमें जो है जो भी एलिमेंट है वो स्पेसिफिक एलिमेंट्स ही डाले जाते हैं डॉक्यूमेंट में. एम्प्टी टैग्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स. ये जो एम्प्टी टैग्स है इसमें एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं which provide additional information or settings फॉर द HTML एलिमेंट, जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर सेटिंग्स देते हैं HTML एलिमेंट के लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द HTML एट्रीब्यूट्स. सो HTML एट्रीब्यूट्स आर स्पेशल वर्ड्स. ये स्पेशल वर्ड्स है जिन्हें यूज किया जाता है ओपनिंग टैग के साथ इनसाइड द ओपनिंग टैग टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट, जिसे जो है ओपनिंग टैग के अंदर जो है यूज किया जाता है ताकि जो एलिमेंट है उसके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके. Attributes help to provide extra information about the tags. ये जो attributes है वो हमें help करते हैं हमारे जो tags है उसके बारे में extra information ये देते हैं. They always come in pair. ये हमेशा pair में आते हैं. ये आप देख सकते हैं syntax दिया है, एक attribute name दिया गया है value का. So we always separate the attribute name and value by this mark. सो हम क्या करते हैं हमेशा एट्रीब्यूट का जो नाम है और जो वैल्यू है उसे हम हमेशा इज इक्वल टू साइन से सेपरेट करते हैं. एन ओवरव्यू ऑफ HTML मार्कअप सिंटेक्स टॉट सो फार इज प्रेजेंटेड हियर. यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया है कि HTML मार्कअप जो सिंटेक्स है वो कैसे शुरू होता है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है H1 क्लास इज इक्वल टू प्राइमरी. सो H1 जो है हमारा हमारा जो भी कंटेंट हम लिखेंगे वो किस फॉन्ट का होगा, फॉन्ट बता रहा है, ये एक एट्रीब्यूट है. नेक्स्ट ये हमारा देख सकते हैं आप स्टार्टिंग टैग है. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है हेडिंग. हेडिंग जो है किस फॉन्ट में लिखी जाएगी वो यहाँ पे हमें पता चल रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं
हेडिंग का क्लोजिंग टैग है। सो ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। सो ये है हमारा HTML मार्कअप सिंटैक्स। Now let's move on to basic tags. So the following table shows the basic HTML tags that are used to define the basic web page. ये जो टैब है, ये जो टेबल है, ये दिखा रहा है कि कौन कौन से बेसिक HTML टैग्स हैं जिन्हें यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए बेसिक वेब पेजेस को। सो यहाँ पे पहले हमारा आता है टैग, ये हमारे टैग्स हैं एंड उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो ये जो फर्स्ट टैग है इसे किस काम में हम यूज करते हैं, ये स्पेसिफाई करता है डॉक्यूमेंट के बारे में एज अ वेब पेज टू द ब्राउजर। नेक्स्ट है हमारा हेड जो हेडिंग बताता है। सो ये स्पेसिफाई करता है अबाउट द वेब डॉक्यूमेंट लाइक टाइटल एंड मेटा। फिर आता है हमारा टाइटल टैग जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दोनों दिख रहा है, ये हमें टाइटल बताता है वेब पेज का। फिर आता है बॉडी टैग जो स्पेसिफाई करता है, बॉडी मीन्स जो पूरा पेज है उसका जो भी बॉडी ऑफ कंटेंट है वो सारा हम इस टैग के अंदर लिखते हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे हम इमेजेस भी इंसर्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं और भी चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हैं। Now here you can see the following code shows how to use these basic tags. ये जो कोड है ये बताता है कि कैसे हम इन बेसिक टैग्स को यूज़ करते हैं। सो पहले हमने HTML ओपन किया, फिर हेडिंग लिखी, यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग गोज हियर। ओपनिंग टैग को यूज़ किया, क्लोजिंग टैग को यूज़ किया, फिर हम टाइटल लिख रहे हैं तो ओपनिंग टैग है, टाइटल यहाँ लिख दिया और फिर क्लोजिंग टैग। फिर बॉडी टैग ओपन किया, बॉडी लिख दिया, बॉडी क्लोज, और फिर हमने जो HTML को क्लोज कर दिया। तो ऐसे ही हमें सिंटेक्स को लिखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेसिक एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे HTML में। सो ये जो टेबल है आप देख सकते हैं, ये हमें बेसिक HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहा है जो कि हमारे बेसिक वेब पेज को दिखाते हैं। सो पहला एट्रीब्यूट है BG कलर जो बैकग्राउंड कलर के लिए यूज़ किया जाता है। ये बैकग्राउंड कलर को दिखाता है कि किस कलर का हमारा बैकग्राउंड होगा, हमारा जो वेब पेज है उसका जो बैकग्राउंड किस कलर का होगा। अगर हम इसे यूज़ नहीं करते तो क्या होता है, जो बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वहाँ पे वाइट कलर होता है उसी कलर का आपको बैकग्राउंड दिखाई देगा। एंड ये है एग्जाम्पल जहाँ पे हमने बॉडी BG कलर एंड कलर हमने येलो सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट। ये जो एट्रीब्यूट है इसे यूज़ किया जाता है टेक्स्ट के लिए, स्पेसिफाई करता है कलर ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट का कलर है वो स्पेसिफाई करता है जो भी हमें यहाँ लिखना है। अगर हम इसे नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक ही रहेगा। सो ये है हमारा एग्जाम्पल जहाँ पे हमने बॉडी लिखा है, देन टेक्स्ट एंड देन टेक्स्ट का कलर ब्लू होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा बैकग्राउंड। सो ये जो एट्रीब्यूट है इसे यूज़ किया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए जो रास्ता हमारे इमेज का, इमेज लाइव टू बी डिस्प्लेड, जो भी हमारा इमेज है उसका बैकग्राउंड क्या होगा वो दिखाने के लिए यहाँ पे ये होता है। सो जब बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, जो बैकग्राउंड का जो कलर एट्रीब्यूट है उसमें जो कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो जाएगा। सो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जो इमेज है वो उस पूरे की कंट्रोल ले लेता है। और यहाँ पे हमने लिखा है बॉडी बैकग्राउंड एंड यहाँ पे हमने बैकग्राउंड में लगा दी है वाटर लिलीज। नेक्स्ट लेफ्ट मार्जिन। सो ये जो एट्रीब्यूट है इसे यूज़ किया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए कि कितना स्पेस होना चाहिए लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट स्पेस कितना होना चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट साइड से ऑफ द ब्राउजर विंडो। ये क्या करता है, ये वैल्यू को स्पेसिफाई करता है पिक्सल्स में। तो आप देख सकते हैं बॉडी की जो लेफ्ट मार्जिन है वो 60 होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टॉप मार्जिन। ये जो एट्रीब्यूट है इसे यूज़ किया जाता है स्पेसिफाई करने के लिए कि कितना स्पेस होना चाहिए लेफ्ट से कहाँ पे, टॉप मार्जिन की तरफ ब्राउज़र के विंडो में। सो जो फाइनल वैल्यू है ब्राउज़र के विंडो की वो वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई होती है पिक्सल्स में। अगेन आप देख सकते हैं हमने लिखा है बॉडी टॉप मार्जिन विच इज़ इक्वल टू 100। सो यहाँ पे हमने ला के इसको सेट कर दिया है। तो ये थे कुछ एट्रीब्यूट्स। नाउ लेट्स सी
अब यहाँ पे इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, ये कोड हमने लिखा है जहाँ पे हमने HTML ओपन किया है, फिर हेडिंग ओपन की है, फिर टाइटल ओपन किया है। टाइटल में हमने लिख दिया बॉडी टैग, टाइटल क्लोज कर दिया, हेडिंग क्लोज कर दी। अब हमने बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो डाल दिया, टेक्स्ट का कलर रेड कर दिया, लेफ्ट मार्जिन 100 कर दिया, टॉप मार्जिन 100 कर दिया। अब यहाँ पे जो हेडिंग है वो ये है एग्जाम्पल ऑफ बॉडी टैग, और हेडिंग क्लोज कर दी। फिर हमने पैराग्राफ को स्टार्ट किया जिसमें ये पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा, दिस पैराग्राफ इज रिटन बिटवीन द बॉडी टैग, और फिर हमने जो है पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब बॉडी टैग को क्लोज कर दिया और HTML टैग को क्लोज कर दिया। तो जब हम ये सारा कुछ लिखते हैं अपने नोटपैड में, फिर ये जो आउटपुट है ये हमें दिखाई देगा, जिसमें हम देख सकते हैं बैकग्राउंड के कलर को येलो किया गया है, टेक्स्ट का कलर जो है रेड हो चुका है, एंड जो अलग अलग चीज़ें लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, सब चीज़ें हमने लगाई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें शो हो रही है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग टैग्स। कैसे हम टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स को यूज करते हैं। सो HTML फॉर्मेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। ये एक प्रोसेस है जिससे हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव, ताकि हमारा टेक्स्ट और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। सो देयर आर मेनी फॉर्मेटिंग टैग्स प्रेजेंट इन HTML। बहुत सारे आपको फॉर्मेटिंग टैग्स मिलेंगे HTML में जो प्रेजेंट है। अभी जो टेबल है ये हमें दिखाता है HTML टैग्स यूज फॉर फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, वो HTML टैग्स जिनकी मदद से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की। सो ये है हमारे टैग्स और ये है हमारा डिस्क्रिप्शन। सो पहला आप देख सकते हैं, पहला टैग जो कि बोल्ड के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स आप इसमें अगर कंटेंट को लिखते हैं तो कंटेंट बोल्ड हो जाएगा। फिर आता है EM टैग। सो ये एक क्या है, ये एक फ्रेज टेक्स्ट है, ये डिफाइन करता है टेक्स्ट को, एम्फसाइज करता है टेक्स्ट पे। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट टैग है स्ट्रॉन्ग टैग, ये भी एक फ्रेज टैग है और ये जो है इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आप देख सकते हैं आई टैग, जो कि टेक्स्ट को इटैलिक्स में लिखने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है सब टैग, जो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट को हम सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आता है सब टैग, जिसको हम सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है इंस टैग, जो कि टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है डेल टैग, जो टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है मार्क टैग, जिसको हम टेक्स्ट को मार्क करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे अलग अलग टैग्स हैं एंड उनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो पहला स्ट्रॉन्ग टैग था, जिसमें आप देख सकते हैं कि वेलकम टू इंडिया, इंडिया को अलग से जो है यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया। फिर बी टैग से हमने ये देख सकते हैं पहला वर्ड जो है उसे बोल्ड कर दिया है। फिर एम टैग से जो है हमने जो है ये कर दिया है। फिर आई टैग से इटैलिक्स कर दिया है। स्मॉल टैग से आप देख सकते हैं सिमिलरली अदर टैग्स को कैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया, जिसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा था। नाउ यहाँ पे आप कोड के एग्जाम्पल दिए गए हैं। सो पहले हमने HTML ओपन किया, हेड ओपन किया, टाइटल ओपन किया, फॉर्मेटिंग टैग्स लिखा, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, अब बॉडी ओपन हो गई। नाउ अब हमने जो है अपना जो भी टैग्स थे वो नॉर्मल टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट, एम्फसाइज टेक्स्ट और सारे जो एट्रीब्यूट्स थे, सारे जो टैग्स थे वो यहाँ पे हमने लगा दिए। सो आफ्टर पुटिंग दिस वी गेट दिस एज आर रिजल्ट। सो ये रिजल्ट हमारे सामने आएगा जब हम उस कोड को टाइप करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज टेबल टैग्स। सो HTML टेबल टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट अ डेटा इज इन टेबुलर फॉर्मेट। सो ये जो टैग है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो भी डेटा है वेब पेज पे उसे एक टेबल फॉर्म में ये हमें रखता है और वो टेबल जो है रोज और कॉलम्स की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल दिख रही है जो इन टेबल टैग्स को डिस्क्राइब कर रहा है। सो चलिए देखते हैं कौन कौन से टेबल टैग्स हैं। पहला आप देख सकते हैं टेबल टैग, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, ये टेबल को डिफाइन करता है। फिर आप देख सकते हैं TR टैग,
जो डिफाइन करता है कितने रोज हैं टेबल में। फिर th टैग जो डिफाइन करता है जो हेडर सेल है टेबल में उसको। फिर td टैग जो डिफाइन करता है जो भी डेटा है सेल में टेबल के उसको। फिर आता है कैप्शन टैग जो टेबल के कैप्शन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट आता है कॉल ग्रुप जो कि डिफाइन करता है नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल, कितने ग्रुप ऑफ कॉलम्स होंगे टेबल में फॉर फॉर्मेटिंग के लिए। सो द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब्स द कॉमनली यूज टेबल टैग एट्रीब्यूट्स। ये जो टेबल है ये डिस्क्राइब कर रहा है सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले टेबल टैग एट्रीब्यूट्स को। सो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, उनके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं और उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। सो पहला जो एट्रीब्यूट है वो है बॉर्डर। ये जो एट्रीब्यूट है ये क्या बताता है, थिकनेस जो है हमारे बॉर्डर की कितनी होगी टेबल के आसपास ये बताता है। और जो यहाँ पे वैल्यू है वो पिक्सल्स में लिखी जाती है। हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल। नेक्स्ट है बॉर्डर कलर। ये जो एट्रीब्यूट है ये स्पेसिफाई करता है कि क्या कलर होगा हमारे बॉर्डर का, टेबल में जो हम बॉर्डर डाल रहे हैं उसमें क्या कलर होगा। एंड हियर इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड कलर। ये जो एट्रीब्यूट है ये बताता है बैकग्राउंड कलर क्या होगा हमारे टेबल का। एंड हियर इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड। ये एट्रीब्यूट बताता है URL ऑफ एन इमेज फाइल। इमेज फाइल की क्या URL है जो कि डिस्प्ले होनी है बैकग्राउंड में। एंड हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है विड्थ और हाइट। ये जो एट्रीब्यूट है स्पेसिफाई करता है कितनी विड्थ या कितनी हाइट होगी टेबल की। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो पिक्सल्स में या फिर परसेंटेज में होती है। एंड हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल। Now let's learn about the attributes of tr, td and th। अब tr, td और th के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला आता है अलाइन। ये जो एट्रीब्यूट है ये स्पेसिफाई करता है कि जो टेक्स्ट है वो कैसे अलाइन होगा। एंड ये बताता है अबाउट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट विद इन अ सेल। सो जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट की तरफ होगा, राइट की तरफ होगा या सेंटर की तरफ होगा, ये यहाँ पे हमें पता चलता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सेंटर अलाइन किया है इस एग्जाम्पल में। फिर आता है बैकग्राउंड कलर। ये एट्रीब्यूट क्या बताता है, हमें बैकग्राउंड कलर बताता है हमारे रो का या फिर डेटा सेल का। एंड हियर इज द एग्जाम्पल। फिर आता है कॉल स्पैन। ये एट्रीब्यूट हमें जो है नंबर बताता है कॉलम्स का, डेटा सेल्स का जो कि उस टाइम पे है। और जो एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं td और th टैग्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड हियर इज द एग्जाम्पल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कोड एग्जाम्पल। सो ये है कोड जो हमें लिखना है अपने नोटपैड में। एंड हियर यू कैन सी दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट आफ्टर राइटिंग द कोड्स। नेक्स्ट कम्स लिस्ट टैग्स। So HTML list tags is used for defining a list item in ordered, unordered and menu list. So ये जो list tag है HTML list tag इसको यूज़ किया जाता है लिस्ट बनाने के लिए ordered way में, unordered way में या फिर menu list के फॉर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल दिया गया है जो डिस्क्राइब करता है कॉमनली यूज लिस्ट टैग्स। अलग अलग तरीके के लिस्ट टैग्स के बारे में बताता है। तो पहला है UL टैग जो क्या बताता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। फिर आता है OL टैग जो हमें ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताता है। फिर आता है LI टैग जो लिस्ट आइटम्स के बारे में बताता है। फिर आता है DL टैग जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में बताता है। फिर आता है DT टैग जो टर्म बताता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसके बारे में है। एंड फिर आता है DD टैग जो डिस्क्रिप्शन है हमारा टर्म का डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसके बारे में बताता है। द टाइप एट्रीब्यूट इन लिस्ट टैग। अब कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिस्ट टैग में यूज करते हैं। सो वी कैन यूज टाइप एट्रीब्यूट। ये जो टाइप एट्रीब्यूट है इसे हम यूज कर सकते हैं लिस्ट टैग में, जो कि क्या करता है जो स्पेसिफाई करता है किस तरीके का काइंड ऑफ मार्कर यूज इन द लिस्ट आइटम्स, किस तरीके का मार्कर यूज किया जा रहा है लिस्ट आइटम लिस्ट में।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यूएल टाइप क्या बताता है, स्क्वायर। यूएल टाइप हमने यहाँ पे डिस्क डाल रखा है, यूएल टाइप सर्कल डाल रखा है ना। ओएल टाइप जो आप देख सकते हैं डिफॉल्ट केस न्यूमरल डाल रखा है। एंड सिमिलरली अदर जो है चीज़ों को हमने यहाँ पे लिख रखा है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द स्टार्ट एट्रीब्यूट। सो वी कैन यूज स्टार्ट एट्रीब्यूट फॉर OL tag to specify the starting point of the numbering we need. So ये जो start attribute है हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, OL tag के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि वो स्पेसिफाई करे कि क्या है स्टार्टिंग पॉइंट हमारे नंबर्स का, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट हमें चाहिए अपने नंबर्स का। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शंस दिए गए हैं रिलेटेड टू इट। सो 3 को हम ऐसे 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 या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी द कोड एग्जाम्पल विथ आउटपुट। सो ये है हमारे कोड्स जिन्हें हमें कहाँ लिखना है, हमें अपने नोटपैड में लिखना है। एंड ये है हमारा आउटपुट। इस कोड को लिखने के बाद ये आउटपुट हमें मिलने वाला है। नेक्स्ट आता है फ्रेम्स। सो फ्रेम्स जो है HTML में ये हमें हेल्प करते हैं डिवाइड करने में विंडो को ऑफ द ब्राउज़र इनटू मल्टीपल रेक्टेंगुलर रीजन्स। ये हमारे विंडो को, जो हमारा ब्राउज़र का जो विंडो है उसे बहुत सारे रेक्टेंगुलर रीजन्स में डिवाइड करते हैं और हर एक जो रीजन होता है उसमें आपको अलग अलग HTML वेब पेज मिलेंगे। ईच ऑफ देम वर्क्स इंडिपेंडेंटली, और ये जितने भी पेजेस हैं ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। सो अ सेट ऑफ फ्रेम्स इन द एंटायर ब्राउजर इज नोन एज फ्रेम सेट। सो ये जो सेट ऑफ फ्रेम्स होते हैं जो पूरे ब्राउजर में होता है उसे हम फ्रेम सेट कहते हैं। ये हमें बताता है टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिवाइड ब्राउजर विंडो। ये बताता है कि कैसे जो ब्राउजर का विंडो है उसको डिवाइड करना है फ्रेम्स में। एंड द वेब पेजेस दैट ईच वन हैज टू लोड, और कौन से वेब पेज को हर एक को लोड करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फ्रेम टैग्स। सो द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब्स द वेरियस टैग्स दैट आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग फ्रेम्स इन HTML। सो पहला है फ्रेम सेट एंड इट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ द बॉडी टैग। बॉडी टैग की जगह इनसे यूज़ किया जाता है। नॉर्मली हम बॉडी एलिमेंट को यूज़ करते हैं क्योंकि इट कंटेन्स द फ्रेम एलिमेंट विच एज यूज्ड टू ऐड ईच फ्रेम, जिसे यूज़ किया जाता है हर फ्रेम को ऐड करने के लिए। फिर आता है फ्रेम, ये स्पेसिफाई करता है कंटेंट को, अलग अलग फ्रेम्स का है जो भी कंटेंट है वेब ब्राउज़र में। फिर आता है बेस, ये जो यूज़ किया जाता है सेट करने के लिए डिफ़ॉल्ट टारगेट फ्रेम को हमारे पेज में, दैट कंटेन्स लिंक्स हुज कंटेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड इन अनदर फ्रेम। ये बताता है कि किसका कंटेंट दूसरे फ्रेम में हमें शो करना है। सो हियर यू कैन सी द कोड एग्जाम्पल्स। सो ये कोड हमें अपने नोटपैड में लिखना है एंड हियर दिस इज द आउटपुट that we are going to get here. Now let's learn about the attributes of frame tag. क्या है attributes frame tag के? So यहाँ पे कुछ important attributes दिए गए हैं frame tag के। पहला है src। ये जो attribute है इसे यूज़ किया जाता है किस लिए? It is used to give the file name that should be loaded in the frame. ये बताता है कि कौन सा फाइल नेम लिखना है हमें अपने फ्रेम में, और इसकी वैल्यू जो है URL में दी गई होती है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है और इसकी मदद से क्या होगी, जो HTML फाइल है वो यहाँ पे लोड हो जाएगी हमारे HTML डायरेक्टरी में। फिर आता है नेम। सो ये जो एट्रीब्यूट है ये हमें हेल्प करता है देने में एक नेम हमारे फ्रेम को। इसे यूज़ किया जाता है इंडिकेट करने के लिए ऑन विच फ्रेम अ डॉक्यूमेंट शुड बी लोडेड। ये बताता है कि किस फ्रेम पे डॉक्यूमेंट को लोड करना है। It is especially important when we want to create links in one frame. ये तब important होता है जब हमें लिंक को क्रिएट करना होता है किसी भी एक फ्रेम में। That load pages, जो पेजेस को लोड करता है into another frame, दूसरे
फ्रेम में, बिकॉज इन दैट केस द सेकेंड फ्रेम नीड्स अ नेम टू आइडेंटिफाई, क्योंकि इस केस में क्या होता है, जो दूसरा फ्रेम है उसे क्या चाहिए होता है, एक नेम चाहिए होता है आइडेंटिफाई करने के लिए खुद को एज द टारगेट ऑफ द लिंक। नेक्स्ट है फ्रेम बॉर्डर। सो ये जो एट्रीब्यूट है इसे हम यूज करते हैं स्पेसिफाई करने के लिए कि जो बॉर्डर है, वेदर द बॉर्डर्स ऑफ दैट फ्रेम आर शोन और नॉट, जो बॉर्डर है फ्रेम के वो दिख रहे हैं या नहीं। इट ओवरराइड्स द वैल्यू गिवन इन द फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट। ये क्या करता है, ओवरराइड कर देता है जो भी वैल्यू दी गई है फ्रेम बॉर्डर एट्रीब्यूट में ऑन द फ्रेम सेट टैग, फ्रेम सेट टैग पे, इफ बॉर्डर इज गिवन, अगर बॉर्डर दिया गया है। एंड दिस कैन टेक वैल्यूज ईदर 1 और 0, और ये जो है 1 की वैल्यू लेता है जो कि येस है और 0 की वैल्यू लेता है जो नो है। नाउ फोर्थ है मार्जिन विड्थ। सो ये जो एट्रीब्यूट है हमें हेल्प करता है स्पेसिफाई करने में जो भी विड्थ है किसका, स्पेस का बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द बॉर्डर, जो भी स्पेस है लेफ्ट और राइट का जो बॉर्डर का है उसको, ऑफ द कंटेंट ऑफ द फ्रेम एंड फ्रेम इटसेल्फ, एंड द वैल्यू गिवन इन पिक्सल, और यहाँ जो वैल्यू है वो जो है पिक्सल में होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मार्जिन विड्थ यहाँ पे हमने 10 दिया है। नेक्स्ट है मार्जिन हाइट। ये एट्रीब्यूट हेल्प करता है स्पेसिफाई करने के लिए क्या हाइट होनी चाहिए, स्पेस जो भी यहाँ पे दिया गया है टॉप और बॉटम बॉर्डर के बीच में क्या स्पेस होनी चाहिए फ्रेम के, एंड इट्स कंटेंट, उसके कंटेंट के बीच में। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो पिक्सल्स में दी जाती है, एंड हियर यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ मार्जिन हाइट। नेक्स्ट है नो रिसाइज। सो ये जो नो रिसाइज है, इट इज बाय डिफॉल्ट वी कैन रिसाइज एनी फ्रेम बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग ऑन द बॉर्डर्स ऑफ अ फ्रेम। सो जो फ्रेम के जो बॉर्डर है उन पे हम क्लिक करके किसी भी फ्रेम को हम जो है रिसाइज कर सकते हैं, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। The no resize attribute prevents a user from being able to resize the frame accordingly. ये जो no resize ऑप्शन है, एट्रीब्यूट है, ये जो यूजर उसे जो है प्रिवेंट करता है रिसाइज करने से फ्रेम को। एंड हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल। नेक्स्ट है स्क्रॉलिंग। सो ये जो एट्रीब्यूट है ये कंट्रोल करता है जो भी अपीयरेंस है हमारे स्क्रॉल बार का, जो कि हमारे फ्रेम पे आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है इट टेक्स ईदर द वैल्यू एज येस, नो और ऑटो। यहाँ पे ये 3 वैल्यूज ये लेता है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट है लॉन्ग डेस्क। सो ये जो एट्रीब्यूट है ये हमें हेल्प करता है प्रोवाइड करने में एक लिंक टू अनदर पेज कंटेनिंग अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट। मीन्स जो भी कंटेंट है उसका एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमें मिलेगा उस फ्रेम का। अब आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट कम्स फॉर्म्स। सो फॉर्म्स आर यूज टू इनपुट द वैल्यूज। ये जो फॉर्म्स है इन्हें यूज किया जाता है वैल्यूज को डालने के लिए। ये जो वैल्यूज हैं दे आर देन सेंड टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। इन्हें जो है आगे प्रोसेस होने के लिए भेजा जाता है। फॉर्म्स यूजेस इनपुट एलिमेंट्स। यहाँ पे आपको फॉर्म्स में इनपुट एलिमेंट्स मिलेंगे जैसे कि टेक्स्ट फील्ड हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, लिस्ट हो गया, सबमिट बटन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। अगर हमें डेटा को यहाँ पे एंटर करना है, दे हैव एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड इनपुट। इनके पास आपको एट्रीब्यूट्स भी मिलेंगे, एलिमेंट्स भी मिलेंगे जिसमें आप वैलिड इनपुट दे सकते हैं। एंड यहाँ पे एक टेबल दी गई है जो डिस्क्राइब करता है कॉमनली यूज टैग्स को जब हम क्रिएट करते हैं फॉर्म को। सो पहला है फॉर्म, जिसमें आप ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही टैग्स दे सकते हैं, और इसे यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए HTML फॉर्म को। फिर आता है इनपुट, इसे यूज़ किया जाता है डिफाइन करने के लिए जो इनपुट फील्ड है उसे। फिर है टेक्स्ट एरिया, ये डिफाइन करता है क्या टेक्स्ट एरिया होगा, जो हेल्प करता है हमें एंटर करने में मल्टी लाइन टेक्स्ट को। फिर आता है लेबल, ये डिफाइन करता है लेबल ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। हमारा जो इनपुट एलिमेंट है उसके लेबल को ये डिफाइन करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोड एग्जाम्पल। अब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ की हैं
and this is the example that we have to enter in the notepad, and here you can see the result. Now let's move on to form attributes. So apart from some common attributes, the following is a list of the most frequently used form attributes. So ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले form attributes हैं. पहला आप देख सकते हैं action. It is the URL where the form data is sent. ये वो URL है जहाँ पे form data को भेजा जाता है. Next, method कब यूज़ करते हैं? These are used to upload data. इसे जो है डेटा को अपलोड करने के लिए यूज़ किया जाता है. The most commonly या the most frequently used are GET and POST methods. ये दो methods हैं जिन्हें हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. Next, target. ये स्पेसिफाई करता है जो भी हमारे टारगेट विंडो है या फ्रेम है जहाँ पे जो रिजल्ट होना चाहिए हमारे स्क्रिप्ट का, जो कि यहाँ पे दिखाई देगा. एंड यहाँ पे आपको ये जो वैल्यूज मेंशन की गई हैं ये वैल्यूज मिलेंगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेट्स समराइज. सो अदर देन HTML, थिंक ऑफ अनदर प्रोग्रामिंग और मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट. सो HTML के अलावा और कौन सा लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट में यूजफुल है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम HTML? ये HTML से कैसे डिफरेंट है? एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट कैन वी गो फॉर इट? और हम उसको क्यों चूज करें ये भी आपको बताना है. नेक्स्ट, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड द ALT attribute इन इमेज टैग्स? क्यों इम्पॉर्टेंट है ALT attribute को यूज करना इमेज टैग में? When using images on the web page, जब हम images को यूज कर रहे हैं वेब पेज पे. How does this attribute benefit both the users and search engines? कैसे ये attribute दोनों यूजर को और सर्च इंजन दोनों को ही फायदा पहुंचा रहा है? So these two answers you have to write on yourself. Now let's quickly move on to reboot. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML was created by Tim Berners-Lee at CERN, and tags in HTML are categorized into two types as container tags and empty tags. Tags are based on the basis of opening and closing. Tag is basically a command that tells the web browser how to display the text, audio, graphics or video on a web page for better understanding. Attributes provide extra information about the tags. Formatting tags are used to format the text for better look and feel. Table tag in HTML is used to display data in tabular form. List tag is used for specifying a list item, for example ordered list or unordered list. Frames help us to divide the window of the browser into multiple rectangular regions. Forms are used to input the values from the user. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's quickly move on to the book exercise, which is let's go. Now let's move on to A exercise, which is fill in the blanks with the help of the words given in the box. Here the first one is an element that only has a starting tag and no ending tag is empty element. Body tag defines the body for the web page. HTML stands for Hypertext Markup Language. The textual content that appears in the source HTML document but is not rendered by the browser is called comment. Tag in HTML documents is surrounded by angular brackets which has a specific meaning. And the sixth one is forms are used to input values from user. Now let's move on to B exercise, which is write true or false. So here the first one is WordPad is used for writing HTML codes. False, it's Notepad. Second, HTML stands for Hypertext Markup Language. Yes, true. Third one, Tim Berners-Lee created the first web browser at Learn
This is false. It was sewn. Now, fourth one, table tag is a container tag. Yes, true. Fifth, an HTML file can be saved with extension HTML, doc or text in order to be viewed by a web browser. This one is false. Sixth one is tr tag defines the rows in the table. Yes, this one is true. So these are the answers to true or false. Now let's move on to see exercise, which is take the right answer. Here the first one is, which of the following elements is responsible for making the text bold in HTML? I, A, B or P? Which tag? It is B tag. Now, which of the following tag is used to insert a line break in HTML? BR tag, P tag, pre tag or IMG tag? So here the correct answer is BR tag. Third one, which character is used to represent the closing of a tag in HTML? Backward slash, semicolon, forward slash or colon? Here the correct answer is forward slash. Which of the following elements is responsible for making the text underlined in HTML? I tag, italic tag, U tag or none of the above? Here the correct answer is U tag. Now let's move on to the next question, question number 5. HTML tags are enclosed in this tag, this tag, this tag or this. So here it is enclosed in angular brackets. Now the sixth one, which tag defines the title in HTML? A, title, B or head tag? So which is the tag here? So here the correct answer is title tag. So these are the answers that you have to write down and you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.